Yes. So from this heading we are going to start. So health status after independence. Now what is the meaning of this? That when our country was under the British rule, under the colonial rule, so those people, they did not do anything for the betterment of our people. Whatever little bit has been done by them, their ultimate target was their own progress. It was their own economic benefit. Anyhow, whatever little bit was done, but that was not up to the mark as per the population of our country. Now you all people know very well that India is at second place with regard to population. ठीक है ना? And which country is at the first place? China. And surprisingly, China has started curtailing its birth rate, but in India this type of thing is still not there, and it is being felt and estimated that in the coming 30 to 50 years, India will surpass China with regard to population. मतलब India will become number one country having excessive population, first place in the world. ठीक है, और किसी चीज में हो ना हो, but in population India will be the first country having maximum population. But in comparison to that, in proportion to that excessive population, the availability of health facilities is very less. Although it is doing progress, our country is doing progress, but keeping in view the large size of the population, जितना होना चाहिए, जितने लोगों का number है, as compared to that, health facilities are quite less in number, so they need to be improved. ठीक है? So now who has this responsibility? So in our country there is a federal structure. You have read in pol science also. There is central government, state and local governments. ठीक है? तो health से related all the policies, all the programs, they are formulated by the central government. Although health issue is there, health subject is there in state list also. I hope you remember union list, state list, ये सारा भी है. But even then, the major responsibility of formulating the health policy, health program, overall health program for whole of the country, that responsibility lies with the central government. And then central government advises rest all the state governments, all the union territory governments and the state governments to implement those policies. ठीक है, एक guidelines जो है ना, broad guidelines, they are issued by the center, but they are followed in heart and spirit properly. They are followed by the state governments and union territory governments. Now question comes कि can state governments not do anything on their own? They can do, but their programs are also in coordination with the center. कोई उसके बाहर जाके नहीं होते हैं, उसी से साथ मिलते जुलते ही स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना अपना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट दे आर जस्ट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंटर. एंड देन हु बियर्स ऑल द एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा आता है, तो दैट एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. And state governments are, I hope you remember in budget chapter we have read about this thing that state governments are provided different kinds of grants, है ना, उनको मदद दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन. तो जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, गाइडेंस एज वेल एज ग्रांट्स कि आप अपना ये जो प्रोग्राम्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करिए. जैसे एक फॉर एग्जांपल, एक आपने देखा होगा टीवी पे या वैसे भी पोलियो ड्रॉप्स का मिशन होता है. अब सभी जगह घर घर पे लोग, वो नर्सेज आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग आते हैं कि छोटे बच्चे तो नहीं है यहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स पिलाना है. हर साल या साल 2 साल के बाद वो आते हैं ना. तो उसका मतलब क्या है? वो इतनी मैन पावर को एम्प्लॉय करना, इतने लोगों को एम्प्लॉय करना, इतनी ड्रॉप्स का, इंजेक्शंस का अरेंजमेंट करना, ये सारा स्टेट की गवर्नमेंट के हक, मतलब उसके इतना उसके सोर्सेज नहीं होते हैं कि इतने वास्ट लेवल पे वो सारा अरेंज कर सके. सो ऑल अरेंजमेंट्स आर डन बाय द सेंटर, बट दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. So in short we can say that there is still need of expansion of health facilities keeping in view the large size of our population. ठीक है. उसके बाद next है हमारा, you can see in the book, expansion of public health infrastructure. Now health infrastructure, firstly we should know health infrastructure can be constructed by private sector as well as by public sector. Private sector मतलब private sector के hospital, private doctor, private clinic, प्राइवेट डिस्पेंसरीज, प्राइवेट लैब्स, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में. जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं प्राइवेट, सेम वे. एंड ऑन द अदर साइड, health infrastructure is also it can also be constructed by the government. So whatever efforts are done by the government, they are known as government sector health infrastructure or simply public health infrastructure. पब्लिक मतलब गवर्नमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे वी आर मेनली कंसेंट्रेटिंग इन दिस हेडिंग, वी आर कंसेंट्रेटिंग ऑन एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो नाउ व्हाट हैज बीन डन नाउ इन आवर कंट्री, we see
और ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेशन अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो हमारे कंट्री में 2 मेजर पार्ट्स आर देयर. वन पार्ट इज कैन बी नोन एज रूरल इंडिया, विलेजेस जो हैं जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन इज लिविंग, एंड ऑन द अदर साइड देयर आर अर्बन एरियाज, सिटी एरियाज आर देयर. Very modern cities are there, cosmopolitan cities are there, वेल डेवलप्ड सिटीज आते हैं. ठीक है, तो एक ब्रॉड अगर देखा जाए तो एक रूरल इंडिया कह सकते हैं, एक वी कैन से अर्बन इंडिया. ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज़ टू पे अटेंशन टुवर्ड्स बोथ साइड्स. तो अब नाउ व्हाट हैज़ बीन डन, स्पेशली एट द विलेज लेवल, वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव बीन इनिशिएटेड, दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. अब उनके नाम क्या होते हैं, उनको बोला जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. बीच में आगे नाम आएगा, वी विल डू इन डिटेल. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, या उनको बोल देते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, शॉर्ट फॉर्म में PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स C, कम्युनिटी हेल्थ H, सेंटर C, CHCs. एंड सब सेंटर्स, सब सेंटर्स होते हैं उन विलेजेस में जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है. जो छोटे विलेज होते हैं वहाँ तो सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा. जो थोड़े से कंपैरेटिवली हैं तो विलेज ही हैं, पर थोड़ा सा बड़ा विलेज है तो वहाँ पे मान लो 2 ब्रांचेस की ज़रूरत है, एक से काम नहीं चलता, तो वहाँ पे एक सब सेंटर, एक छोटी सी और ब्रांच, उसको सब सेंटर कह देते हैं. तो दीज टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड. देन in our country जो hospitals हैं, many of the hospitals they are run by the private sector. Along with the private sector, या within the private sector there are various missionary hospitals also. आपने कई जगह ही देखा होगा, जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, या जैसे एक अपने यहाँ पंजाब में जैसे देखो गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल होते हैं ना, सभी जगह, तकरीबन सभी जगह हम देख लेते हैं. तो मिशनरी हॉस्पिटल होते हैं जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs होते हैं, या कोई वैसे चैरिटी वाले जो होते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये भी आपने नाम सुना होगा, मतलब किसी की याद में कोई हॉस्पिटल खोल देता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स आते हैं, दे आर वर्किंग. देन सेम वे इनमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और असिस्टिंग स्टाफ जो होता है, उनके लिए भी कई तरह के प्राइवेट कॉलेजेस आर देयर. ठीक है, उसके लिए उसके बाद है वन टेबल हैज़ बीन गिवन, इफ यू कैन सी इन योर बुक. Actually, I am having old book, that's why I am not going to tell anything about data. So you all are requested to just go through this table, and if possible, you can tick mark. If possible, you can learn the number of hospitals, this dispensaries and hospitals. 2 columns are given है, एक 1951 में, एक मेरी बुक में 2005-6 का है, that is quite old. In your book something, some new year can be given. So एक बार उनको सबको पढ़ के अपने एक तो पॉइंट्स आप लर्न कर लो तो बेटर होगा. ठीक है, डॉक्टर हॉस्पिटल और एक डॉक्टर वाला पॉइंट कि 1951 में इतने डॉक्टर्स थे, नाउ देयर नंबर हैज़ इंक्रीज्ड ए लॉट, बट दिस इंक्रीज इज नॉट सफिशिएंट. Reason you know, because demand of the people, due to excessive population, demand is ever increasing. So keeping in view that demand, this increased number is also still very less as compared to demand of health sector services. ठीक है, उसके बाद है कि जो next point है health infrastructure. It has resulted in eradication of deadly diseases like smallpox, guinea worms, गिनिया नहीं कहना इसको, इट इज़ गिनी वॉर्म्स, एंड नियर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो एंड लेप्रेसी. ये सब चीज़ों के लिए ये जो डिसीजेज हैं, वेरी डेडली डिसीजेज, मतलब आदमी को ख़त्म ही कर देती हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड स्पेशल प्रोग्राम्स, एंड ऑलमोस्ट ये अब मतलब दे आर नियर टू एंड. ये नहीं कह सकते कि 100% एंड हैज़ टेकन प्लेस, बट 99.9% check has been made by the government through its this medical efforts. इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए हैं. ठीक है, एक बीच में जो गिनी वॉर्म्स वर्ड आया है, गिनी वॉर्म का मतलब होता है दोज डिसीजेज विच हैपन ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर. साफ पानी नहीं ना होता, पोल्यूटेड वाटर होता है. तो गिनी वॉर्म जो है वो एक गिनी एक पैरासाइट का नाम होता है, एक इन्फेक्शियस पैरासाइट होता है. तो जो ह्यूमन बॉडी में व्हेन वी ड्रिंक इम्प्योर वाटर, गंदा पानी पी लेते हैं, तो दैट वॉर्म गेट्स इनसाइड द बॉडी और वो कई तरह की फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. तो उसको कंटेमिनेटेड वाटर की डिसीज कह सकते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी नाउ गवर्नमेंट इज डूइंग ए लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड, बट स्टिल population is increasing. Still there are various problems. 100% perfection is not there in any country of the world. So India तो still it is a developing country, तो still lot of efforts are being made. ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, एक बॉक्स का करके दिया हुआ है, वहाँ पे it has been given 3-tier system of health infrastructure. ठीक है,
टीयर, जैसे हम बोलते हैं ना आंसू वाला टीयर, TEAR, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, 3 टीयर सिस्टम। अब इसका मीनिंग क्या है? टीयर मीन्स लेवल, 3 लेवल हम कह सकते हैं, जैसे नर्सरी, LKG, UKG, सेम वे 3 टीयर सिस्टम इज देयर। फर्स्ट पार्ट में आ जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर। लेट मी ट्राई टू शो वन पिक्चर। एक्चुअली yesterday आई थॉट कि समथिंग, सम कलरफुल थिंग शुड ऑल्सो बी शोन टू यू, है। तो मैंने कोशिश की कि आपके लिए पिक्चर्स ढूंढ दूँ ताकि आपको थोड़ा सा, जैसे ये इस टाइप के प्राइमरी हेल्थ का मतलब होता है कि विलेजेस में ही होते हैं ये। जैसे छोटा सा एक हॉस्पिटल जहाँ भी पंचायत का स्पेस अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे एक सिंगल डॉक्टर सिटिंग फैसिलिटी होती है, एक सिंगल डॉक्टर होता है, एक उसका असिस्टेंट होता है। इसका मेन जो पर्पस होता है प्राइमरी हेल्थ केयर इसका सिस्टम का, मेनली ये विलेजर्स को, दे जस्ट मेक देम अवेयर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज, स्पेशली इन्फेक्शियस डिसीजेज, या दे मेक देम अवेयर अबाउट सैनिटेशन, क्लीनिंग, ऐसे चीज़ों के बारे में अवेयर करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड उनको थोड़ा जैसे होता है ना कॉन्शियसनेस लाना, थोड़ा जागरूक करना, उनको अवेयर करना, इस तरह का मतलब वो अपना करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। एंड देन मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, मदर्स और जो छोटे बच्चे होते हैं चिल्ड्रन, उनके रिलेटेड मदद प्रोवाइड करते हैं। एंड जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, जैसे पोलियो से रिलेटेड या लेप्रेसी से रिलेटेड या वाटर कंटेमिनेटेड वाटर से रिलेटेड जो भी वैक्सीन वगैरह देने हैं, तो ये यहाँ पर ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे इनको मतलब कोई ना कोई, जैसे गवर्नमेंट अपने कोई वीक नहीं ऑर्गेनाइज करती, तो ये वाला वीक चलेगा जी, ये वाला वीक चलेगा, एनवायरनमेंट वीक है, ये इस तरह का, ऐसे जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे लोग आते हैं और वो अपना मतलब एक असिस्टेंट पर्सन होता है, ये रिसेप्शन पे जैसे आप देख सकते हो। तो इस तरह से मतलब सिंगल डॉक्टर फैसिलिटी होती है। ज़्यादा यहाँ पे कोई खास काम नहीं होता, थोड़ा बहुत ही, जैसे बोल सकते हैं ना हल्का फुल्का सा, किसी को सर्दी जुकाम हो गया, थोड़ा बहुत फीवर हो गया, इस तरह की दवाइयाँ होती हैं। कोई अगर हम कहें कि वेरी लार्ज स्केल कोई बहुत मेडिकल फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता। एट ए वेरी लोअर लेवल, एक बड़ा सिंपल सा होता है। और जो प्रॉब्लम्स इन डॉक्टर्स को नहीं समझ में आती हैं, मतलब इनके बस के बाहर का काम होता है, तो देन दे रेफर सम अनदर हॉस्पिटल कि भी आप सिटी में जाओ, यहाँ पर इसका इलाज नहीं है। तो ये एक सिर्फ बेसिक सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये इस टाइप के, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, अब जो एक बीच में नाम आया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर, ये है इसी का ही पार्ट है, बट इट इज़ ओनली रिलेटेड टू दोज विलेजेस विच आर कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज, थोड़े से बड़े विलेज होते हैं, तो वहाँ पे ये CHC कम्युनिटी उसको बोल देते हैं, या उसका ही आगे ब्रांच हो तो उसको सब सेंटर बोल देते हैं। और मेनली इनका काम बस लोगों को गाइड करना, थोड़े बहुत इंजेक्शन वगैरह, मेडिसिन हल्का फुल्का सा, बस वही देना। सेकेंड होता है कि एट कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर लेवल पे, जैसे हम बोल सकते हैं टाउन्स या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो होता है एरिया का, तो उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फिर आता है सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर का मतलब होता है ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। थोड़ा बहुत एक्सरे की मशीन है जी, वहाँ पे कोई स्कैनिंग की मशीन भी लगी हुई है, थोड़ा ब्लड टेस्टिंग का भी काम हो जाता है। विलेज वाले में ये सारा कुछ नहीं होता, कोई टेस्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। और कई बार विलेज वाले हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं होती हैं, मतलब ये बड़ा बेसिक सा ही होता है। और जो सिटी का होता है कंपैरेटिवली, जिसको हम, लेट मी ट्राई टू शो, मतलब मैं कोई एग्जैक्ट पिक्चर तो नहीं ले पाई, बट स्टिल दिस टाइप ऑफ पिक्चर्स आर देयर कि बेटर फैसिलिटीज आर देयर, मशीनरी इज देयर, डायग्नोस्टिक के लिए कोई मशीनें हैं वहाँ पे, टेस्टिंग है, लैब का काम भी हो जाता है। तो उस तरह का जो थोड़ा सा सिटी लेवल के ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो बिग टाउन्स या सिटीज या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एंड देन लास्ट इज टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ केयर। टर्शरी हेल्थ केयर में आ जाता है ये, जैसे यहाँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये नीचे वाली जो पिक्चर है, दिस इज रिलेटेड टू दिस सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है। और जो टर्शरी है, टर्शरी में आता है एट ए हायर लेवल। हायर लेवल का मतलब, जो जैसे आपने एक नाम सुना होगा, एम्स इन दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और थोड़ा सा पास आ जाए पंजाब में, चंडीगढ़ में PGI बहुत ही फेमस है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च पूरा नाम, बट हम आम बोलचाल में PGI बोल देते हैं, एम्स बोल देते हैं। तो ऐसे ही ये डिफरेंट स्टेट्स में भी PGI होते हैं, अपनी अपनी स्टेट के अलग अलग।
तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं वो सबसे बड़े लेवल के ऊपर है, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. हियर वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जैसे ये दिल्ली का है, एम्स की पिक्चर्स हैं, तो जो इलाज किसी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं हो पाता है, स्टेट के जो हॉस्पिटल्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे नहीं हो पाता है, देन दोज पीपल दे कैन कम टू दीज टाइप ऑफ एम्स ऑल्सो. यहाँ पर तो ये सिर्फ एक ही जगह की पिक्चर्स हैं, बट ऐसे स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में होती हैं, वहाँ पे पीजीआई नाम करके अपनी अपनी स्टेट के होते हैं, तो लोग वहाँ पे आ सकते हैं. कंपैरेटिवली यहाँ पे जो मेडिकेशन है, जो इलाज है, वो थोड़ा सा सस्ता होता है. बट प्रॉब्लम ये है कि इन हॉस्पिटल्स में ऑल टाइप्स ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज आर अवेलेबल, एवरी टाइप ऑफ मशीनरी, मेडिकल मशीनरी जो भी रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल. बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, क्राउड इज मोर, because people, those who cannot afford expensive medication, they always try to come to these type of hospital. उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की क्वालिटी घटिया, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा रश ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा टर्न नहीं आती है जल्दी, किसी का नंबर नहीं आता है जितनी लोगों की डिमांड होती है. लोग बाहर कॉरिडोर्स में भी बैठ जाते हैं, बाहर रोड्स पे भी बैठ जाते हैं, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है. ठीक है ना, एक्सपेंसिव इलाज करवाना हर एक के बस की बात नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. तो those who are not in a position to afford this type of expensive medication, those people they try to come to these type of government institutions. ठीक है, ये उसका है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स का. लेट मी सी इफ एनी अदर फोटोग्राफ इज देयर रिलेटेड टू दिस. नहीं, बस ये इतना ही है, ये आगे का काम आएगा हमारा. तो इनको बोल दिया जाता है टर्शरी हेल्थ सेंटर्स. ठीक है, ये आपने थोड़े से नाम याद कर लेंगे. नेक्स्ट इज, अच्छा एक बीच में वर्ड है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. लेट मी टेल यू, बिकॉज दिस पॉइंट केम टू माई माइंड, बिकॉज समटाइम्स वी पीपल इन ऑर्डिनरी लाइफ वी कंफ्यूज दीज टू वर्ड्स. वैक्सीनेशन का मीनिंग होता है इंजेक्शन देना. टू इंजेक्ट समथिंग means when any vaccine is injected in our body, it is administered in our body. टीका लगाते हैं ना जिसको बोलते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. तो इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इम्यूनाइजेशन मीन्स दैट थिंग, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है इन जनरल वे वी कैन से रेजिस्टेंस एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी, किसी भी बीमारी से लड़ने की हमारी एबिलिटी, रेजिस्टेंस. तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट रेजिस्टेंस, वैक्सीन्स आर इंजेक्टेड, इंजेक्शन लगाए जाते हैं. ठीक है, तो लगाने के बाद जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेटर होता है, the betterment, the enhancement, the ability of our body to resist different types of diseases. थोड़ा बहुत कोई इन्फेक्शन हो तो हम उसको फेस कर लेते हैं, थोड़ी बहुत कोई बीमारी का कोई बैक्टीरिया हो या वायरस हो, कुछ भी है, तो हम उसको उसके साथ लड़ते हैं, हमारी बॉडी उसके साथ फाइट करती है. तो वो फाइट करने की ताकत कहाँ से आती है? इफ़ अवर इम्यून सिस्टम इज़ बेटर. तो इम्यून सिस्टम बेटर कैसे होता है? इफ़ वी फॉलो ए हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छे तरीके का खाना पीना अपना रखें, अपनी लाइफस्टाइल को रखें, प्लस कुछ अगर वीकनेस है, कुछ डेफिशिएंसी है, तो उससे रिलेटेड हम कोई विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, अगर कोई हमें इंजेक्शन लगाते हैं या हमें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो ही हमें वो खाना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं. तो इम्यूनाइजेशन मीन्स resisting ability of the body which gets enhanced due to vaccination. And vaccination means the process of injecting some medicine इन लिक्विड फॉर्म है तो उसको हम इंजेक्शन कह देते हैं, और अगर खाने वाली कोई टेबलेट है तो उसको तो सीधा टेबलेट या कैप्सूल्स ही कह देते हैं. ठीक है, तो वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन लगाना, और इम्यूनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर का इन्हांस होना, इंक्रीज होना. तो ये सारा कुछ, ये जो हेल्थ सेंटर्स हैं सभी जगह ये सारे काम किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, अभी तक हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, ये सारे गवर्नमेंट का था. नाउ प्राइवेट सेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट because in our country, as you can see in your book, there is much significance of private sector as compared to government. Why? Because jitne bhi the number of hospitals which are there, majority of those hospitals they are being run by private sector. जितने भी हॉस्पिटल्स है उसका 70 to 75% जो हॉस्पिटल्स है हमारे कंट्री में, दे आर बीइंग रन बाय प्राइवेट पीपल, प्राइवेट डॉक्टर्स. उन्होंने अपने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं. तो प्राइवेट सेक्टर का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज़ मच मोर एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. ठीक है, या गवर्नमेंट सेक्टर. सेकेंडली, जितने भी नंबर ऑफ बेड्स हैं, कोई भी जो हॉस्पिटल होता है ना उसका बेटा जो साइज होता है, साइज ऑफ हॉस्पिटल, दैट इज़ मेनली डिसाइडेड बाय द
फैसिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल इन दैट हॉस्पिटल। भाई अगर एट ए टाइम कुछ पेशेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं तो उस हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं जहाँ पे उन पेशेंट्स को लिटाया जा सकता है, उनको मेडिकेशन दी जा सकती है। कई ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास लोकेलिटी में कोई डॉक्टर ने अपना ही क्लिनिक खोला है तो वहाँ पे 1 या 2 बेड्स की फैसिलिटी होती है। कई बार ये होता है ना, हम लोग बीमार पड़ते हैं, कोई ड्रिप लगवानी होती है तो आसपास कोई घर के पास डॉक्टर होता है, 1 या 2 बेड की फैसिलिटी उसके पास भी होती है, बट उससे सभी लोगों का इलाज नहीं हो सकता है ना, 2 से ज़्यादा लोगों को वो एडमिट ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं दे वेरी इन दिस रिगार्ड। कई बहुत बड़े बड़े 100 बेड्स की फैसिलिटी वाले भी हॉस्पिटल्स हैं, कहीं पर 200 बेड्स भी हैं, कहीं पर 10 भी हैं, कहीं पर 50 भी हैं, इट वेरीज। तो बट स्टिल हम कह सकते हैं 40 to 45% जो बेड्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, दैट इज देयर इन प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल। तो इमेजिन ये सिचुएशन कि एक कंट्री, हमारे जैसा कंट्री जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, इतने स्टिल पुअर लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर 45% या इवन 50% तक बेड्स आर देयर इन प्राइवेट सेक्टर, तो एक रफली एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास जितने अवेलेबल बेड्स हैं दैट इज़ हार्डली द 50% ऑफ द टोटल अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ इन अदर वर्ड्स, कि हमारे यहाँ इलाज बहुत महंगा है। अगर लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलती तो देन दे आर फोर्स्ड, दे फील कंपेल्ड। कोई अपने घर के मेंबर को बीमार थोड़ी छोड़ देगा, जैसे भी हो, जैसे कैसे भी हो हम मैनेज करते हैं, तो वी हैव टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बिकॉज अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है तो देन वी गो। सो दिस इज ए थिंग टू बी थॉट अपॉन कि इतना एक्सपेंसिव है हमारे कंट्री में। देन मैक्सिमम जो डिस्पेंसरीज हैं जहाँ पे मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं साथ में, वो सारी भी ज़्यादातर उसका जो है, मैं परसेंटेजेस नहीं बोल रही हूँ बिकॉज मेरे पास ओल्ड डाटा है तो आई एम अवॉइडिंग, आप अपनी न्यू बुक्स में चेक कर लीजिएगा। तो more than 60% जो डिस्पेंसरीज हैं दे अगेन दे आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। देन एक पॉइंट आया है, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइड्स हेल्थ केयर टू 80% ऑफ आउट पेशेंट्स एंड 46% इन पेशेंट। यहाँ पे जो मेन काम की बात है, आउट पेशेंट और इन पेशेंट क्या होते हैं। इन पेशेंट्स आर दोज पेशेंट्स विच नीड टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। बीमारी थोड़ी ज़्यादा है, उनको कुछ ड्रिप लगानी है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो दे नीड टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो जिनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना भी है एज पर द प्रॉब्लम, तो उसको बोला जाता है इन पेशेंट। बट आउट पेशेंट होता है, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत फीवर हुआ, कोई कोई और थोड़ी सी कोई चोट लग गई, चलो जी बैंडेज लगवाने जाना है या कुछ और मेडिसिन फीवर की लेने जाना है, हम जाते हैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके, मिल के मेडिसिन लेके आ जाते हैं। तो जो बस आने जाने वाला काम है, जाना, और वहाँ रह नहीं जाते कि मुझे फीवर है तो मैंने 4 डेज हॉस्पिटल में रहना है, ऐसा तो नहीं ना करते, बस अपनी दवाई लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग बस जाते हैं मेडिसिन लेके आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड आउट पेशेंट्स। एंड दोज हु नीड टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उनको बोल दिया जाता है दिस इन पेशेंट्स। ठीक है, तो ये सारा भी, इसका भी काफ़ी परसेंटेज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट है इनका भी। देन प्राइवेट सेक्टर अगेन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक, मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज। दीज ऑल दीज थिंग्स, आमतौर पे क्या होता है जब हम बोलते हैं हेल्थ, तो हमारे दिमाग में बस एक पिक्चर आती है कि चलो जी डॉक्टर है, नर्स है, एक हॉस्पिटल है, उसका बेड है, बस हम इतना ही सोचते हैं, इससे ज़्यादा दिमाग में आता नहीं है। ठीक है, बट इन रियलिटी दीज आर नॉट द, दिस इज़ नॉट द होल ऑफ द केस। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को बनने के लिए पढ़ाई भी तो करनी होती है, एजुकेशन भी तो लेनी होती है, तो इसका मतलब मेडिकल हॉस्पिटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड, जहाँ पे वो मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे। कोई स्पेशलिस्ट हैं, कोई अपना कोई खास, जैसे आईज़ के हैं या हार्ट के हैं, कोई किसी भी चीज़ के हैं बॉडी ऑर्गन के, उनके लिए खास तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वो स्पेशल उनको पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस भी ज़्यादातर वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, बट स्टिल मैक्सिमम नंबर इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय, एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट सेक्टर पीपल। ज़्यादा लोग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ऐसे ही नर्सेज के कोर्सेज हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशन है वो भी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। डायग्नोस्टिक होता है जहाँ पे मशीनें बनती हैं, जैसे एक्सरे मशीन है, स्कैनिंग की मशीन है, आजकल तो इतने इतने नाम है, याद भी नहीं, हमें पता भी नहीं है कितने कितने प्रॉब्लम्स के लिए ना। आप कभी देखो आई टेस्टिंग करवाने जाते हैं तो कई तरह के वो आंखों के आगे मशीन लगा के वो चेक करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी सामान है। डायग्नोस्टिक मतलब किसी डिसीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, तो वो सारा इक्विपमेंट का भी मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज़ बीइंग डन इन द प्राइवेट सेक्टर।
तो सिंपल सी बोलचाल में हम कहें कि ज़्यादातर जो सारा ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी काम है, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो 70 से 80% जो काम है दैट इज़ बीइंग डन बाय प्राइवेट सेक्टर। इतना इसका रोल है इसका हेल्थ के फील्ड में। तो दैट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर इज़ नो डाउट प्लेइंग वेरी वेरी डोमिनेंट रोल, बट उसके साथ एक माइनस पॉइंट ये है कि ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर ऑर्डिनरी पीपल। एक ये माइनस पॉइंट है। नो डाउट ऑल थिंग्स आर बीइंग डन वेरी नाइस, गुड एफर्ट्स, कोई सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एक जो आम इंसान है, एक आम पर्सन है हुज इनकम लेवल इज़ क्वाइट लेस, तो उस पर्सन के लिए प्राइवेट इलाज करवाना आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना, जिसके पास इनकम ही कम है वो बेचारा अपना खाना पीना चलाएगा कि महंगा इलाज करवाएगा। इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर दैट पर्सन टू मेक अरेंजमेंट ऑफ मनी फॉर सच टाइप ऑफ मेडिकेशन। ये इसका माइनस पॉइंट है। ठीक है जी, चलो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज कि ये मैनी एनआरआईज, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं वो हॉस्पिटल जहाँ पे किसी खास चीज़ का एकदम से इमरजेंसी इलाज 24 आवर्स अरेंजमेंट्स आर देयर। जैसे आपने कई बार कहीं आते जाते हैं तो रास्ते में देखा होगा ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं, या कोई और लिखा होता है सुपर स्पेशलिटी। yesterday I was looking for all these pictures, तो एक फगवाड़ा के आसपास आई ट्राइड टू सर्च, वहाँ पे एक जीबी हॉस्पिटल करके नाम आया, आपको शायद पता होगा, जीबी हॉस्पिटल करके है फगवाड़ा के आसपास। तो वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या मल्टी स्पेशलिटी, मतलब जहाँ पे हर तरह का इलाज पॉसिबल होता है। अगर कोई भी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी को वहाँ ये नहीं कहते कि आप किसी और जगह चले जाओ, आप लुधियाना चले जाओ या दिल्ली चले जाओ, कुछ नहीं, वहीं पर सारा कुछ मिल जाता है, बस मनी होना चाहिए, बाकी सारा इलाज वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। तो प्राइवेट सेक्टर इन नटशेल, प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्थ फील्ड ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, उसके बाद जो ये दिया हुआ है बेटा, इसके ऊपर यू जस्ट राइट ऑन ओनली रीडिंग। ये 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन, कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इन हेल्थ केयर। इसमें एक नाम है सेवा, एक एनजीओज का नाम है, और एक एकॉर्ड। ठीक है, ये इसका सिर्फ नाम ही याद करना है आपने। इसका सिर्फ मतलब ये है कि जो एनजीओज चलाते हैं ना, चैरिटेबल हॉस्पिटल, आपने देखा होगा अपने आसपास कोई ना कोई, किसी जैसे कोई पर्सन की डेथ होगी तो उसकी याद में कोई हॉस्पिटल खोल देता है। तो चैरिटेबल मतलब बड़े कम प्राइस के ऊपर कोई टेम्पल्स में या गुरुद्वाराज में आमतौर पे इस तरह का चलता होता है, कोई ना कोई मेडिकल वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और लोगों को चेक करते हैं, बड़े फ्री में एक तरह से इलाज होता है। अगर पैसे लें भी तो बड़े दवाई के ही पैसे लेते हैं, अदरवाइज इलाज करने का कोई पैसा नहीं लेते, फ्री में। तो जो नीडी लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो यहाँ, ज़रूरी नहीं पुअर ही हो, कई बार डॉक्टर बहुत, वैसे तो डॉक्टर अच्छे ही होने चाहिए, बट लोग इलाज करवा सकते हैं। ठीक है ना, एनजीओज की हेल्प से। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसको आप इम्पॉर्टेंट भी कर लो, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। लेट मी ट्राई टू शो क्या है ये मेडिकल टूरिज्म। यस, दिस यू कैन सी लेटर ऑन फ्रॉम द नेट ऑल्सो। मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया का मतलब है, या वैसे सिंपली मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, व्हेन पेशेंट्स, पीपल ऑफ एनी वन कंट्री, दे गो फॉर देयर मेडिकेशन, दे गो टू सम अदर कंट्री। जैसे हम घूमने के लिए कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं हम टूरिस्ट बन के कहीं जा रहे हैं। तो टूरिज्म विद इन द कंट्री भी हो सकता है, टूरिज्म आउटसाइड द कंट्री इज ऑल्सो पॉसिबल। तो व्हेन आउटसाइड द कंट्री पीपल गो, हम किसी फॉरेन टूर पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो हम वैसे कह देते हैं टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। बट इफ़ वी गो टू सम अदर कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग मेडिकेशन, मेडिकेशन माने इलाज करवाने के लिए, तो जब इलाज करवाने के लिए व्हेन वी गो टू सम अदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म टू सम अदर कंट्री। Now here question is कि many people from different parts of the world, they are coming to India for getting their medication, इलाज करवाने के लिए they are coming to India। ठीक है, तो इंडिया में क्यों आते हैं, उसका फ़ायदे क्या हैं और क्यों आते हैं, तो 2-3 बड़े अच्छे से रीजंस हैं इसके। जैसे यहाँ आप देख सकते हो वाई इंडिया, तो इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन है दैट इज़ क्वाइट लेस एज़ कम्पेयर टू एडवांस्ड कंट्रीज़। जैसे मान लो टीथ का, दांतों का कुछ कोई कैविटी फिल करवानी है, या आंखों का आई टेस्टिंग का, आई से रिलेटेड कोई सर्जरी है, कुछ भी है, वही इलाज अगर अमेरिका में करवाते हैं तो ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, और वही सेम इलाज उसी क्वालिटी का, उसी स्टैंडर्ड का इंडिया में करवाते हैं तो यहाँ पे पैसे कम खर्च होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि ठीक है, अपने यहाँ ज़्यादा मनी क्यों खर्च करना, हम इंडिया में जाके जहाँ पे सस्ता मिलता है, क्वालिटी वही है। प्लस पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी इज़ अवेलेबल।
ये सारा जो है ना, ये नहीं कहना कि विलेज के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं होता, ये सारे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही है मैक्सिमम। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी दे आर प्रोवाइडिंग, चीप मेडिकेशन दे आर प्रोवाइडिंग, लेस एक्सपेंसिव होता है सारा सिस्टम, और सारा उनको बड़ा क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, आफ्टर द सर्जरी जो भी वट एवर रिक्वायरमेंट्स हैं, रहने की, खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़, एक तरह से आप समझ लो मेडिकल कम होटल, सब तरह का उनको मिलता है। जो साथ में फैमिली मेंबर्स आते हैं उनके भी रहने का सब तरह का अरेंजमेंट, मतलब अगले को आके पैकेज की तरह, जैसे होता है ना कहीं घूमने जाना तो इतने पैसे दे दो चलो, बाकी का सारा अरेंजमेंट विल बी डन बाय द एजेंसी। तो ऐसे ही ये हॉस्पिटल हर एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो पीपल प्रिफर टू कम हियर। आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे आपके फगवाड़ा में तो ज़्यादातर बहुत सारे एनआरआईज हैं, हर एक फैमिली में से, हर दूसरे चौथे घर में से वन और द अदर पर्सन इज रिजाइडिंग इन सम अदर कंट्री। तो ख़ास तौर पर वो सर्दियों की छुट्टियों में आते हैं ज़्यादातर, जब यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, तो स्नोफॉल होती है वहाँ पे, छुट्टियाँ होती हैं, तो इधर आ जाते हैं, आके अपना जो भी प्रॉब्लम है इलाज करवाते हैं, देन दे गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। तो ये मेडिकल टूरिज्म का मतलब है। और इंडिया को फिर फ़ायदा क्या है, इंडिया को मिलती है इससे प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज। जब फॉरेनर्स आते हैं यहाँ आके इलाज करवाते हैं, तो उनको अपने कंट्री का मनी लाते हैं, फिर यहाँ आके कन्वर्ट करवाते हैं, तो इंडिया को मिलती है फॉरेन करेंसी। प्लस रेपुटेशन ऑफ इंडिया मेडिकल फील्ड में, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंडिंग ए लॉट। अमेरिका से ये नहीं कि सिर्फ एनआरआईज ही आते हैं, अदर पीपल ऑल्सो, जैसे आसपास के हमारे कंट्री के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, जो इलाज इन देशों में पॉसिबल नहीं है, मतलब ये हमारे से तो बहुत पीछे है हमारे कंट्री से, तो इन कंट्रीज़ के लोग भी, एशियन कंट्रीज़ के लोग भी, दे ऑल्सो कम टू इंडिया, जो इलाज उनको अपने देश में नहीं मिलता है। तो इट इज़ ए प्लस पॉइंट फॉर आवर कंट्री, कीपिंग इन व्यू दिस मेडिकल फील्ड। ठीक है, so time is almost going to be over, so we conclude this work here. Rest of the part, Indian system of medicine, that we will start tomorrow. ठीक है जी, आज आपने यहाँ तक पढ़ना है, और पढ़ के जो जो मेन लाइन्स है उसको अंडरलाइन करके ट्राई टू लर्न देम ऑल्सो। फाइन, with this I want to thank you all. Sukhjeet ma'am, now you can close the meeting, it's almost